प्यारे बच्चों, आइए पढ़ते हैं कूलम्स लॉ के बारे में। कूलम्स लॉ इज एसोसिएटेड विद चार्ल्स ऑगस्टिन द कूलम। According to this law, the force of attraction or repulsion between any 2-point charges Q1 and Q2 is directly proportional to the product of these charges and is inversely proportional to the square of the distance r between the charges. This force always acts along the line joining the two charges. और हम ये लिखते हैं अगर चार्ज Q1 को या Q2 को या दोनों को बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा, R को बढ़ाएंगे तो फोर्स कम होगा। प्रोपोर्शनली साइन को हटा करके कांस्टेंट C is constant of proportionality. It is called as Coulomb constant or electrostatic force constant. C depends upon two things. Firstly, it depends upon the units in which charges, distance and force are measured. Secondly, C depends upon the medium in which the charges are placed. In CGS, C is equal to 1 over K. K is dielectric constant. Well, for vacuum, K equal to 1. For air, K equal to 1.0006. Almost same. For all practical purposes, K is taken to be 1 for air also. तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर? This will be equal to 1 over 1. So 1 into Q1 Q2 over R square. This is the force between two charges Q1 and Q2 separated by distance R in vacuum. चलिए इसको FV से डिनोट कर देते हैं. Now suppose these charges are placed in medium of dielectric constant K. Force कितना हो जाएगा? Fm equal to C की जगह 1 over K. This in medium. Force reduce हो जाएगा. It will become 1 over K times. For example, K for water is 81. So if charges are placed in water, force will become 1 over 81. काफी reduce हो जाएगा. K for metals is infinite. So in metals, the force will become 1 over infinity, 0. Divide कर लें दोनों को. Find out FV over FM equal to ये आ जाएगा K. यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को. Dielectric constant of a medium is the ratio of force between two charges placed a certain distance apart in vacuum to the force between same two charges placed same distance apart in that medium. चलिए अब बात करते हैं in SI. In SI, C equal to 1 over 4 pi epsilon naught. Epsilon naught is absolute permittivity of vacuum or free space.
परमिटिविटी वर्ड आया है परमिट से, कि एयर या वैक्यूम या मीडियम कितना परमिट करते हैं, कितना अलाउ करते हैं चार्जेस को इंटरेक्ट करने के लिए, ये कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो सकती हैं। अब यहाँ फोर्स कितना हो जाएगा, इट विल बिकम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो कूलम्ब कांस्टेंट यहाँ पर कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 SI यूनिट्स। चलिए यूनिट्स लिखते हैं, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट निकालिए, 1/4 पाई एफ इधर आ जाएगा, दिस v इज सबस्क्रिप्ट, चार्ज का यूनिट कूलम, सेकेंड चार्ज कूलम स्क्वायर, डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ फोर्स, SI यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन, SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस मीटर, हियर मीटर स्क्वायर। तो क्या यूनिट आ जाएगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से कूलम्ब कांस्टेंट यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अगर निकालें तो ये आ जाता है 9 × 10⁻⁹ SI यूनिट्स। SI यूनिट्स कैसे लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 ओवर R स्क्वायर इक्वल टू F। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू F इंटू R स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 इंटू Q2। यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, यूनिट ऑफ डिस्टेंस मीटर, मीटर स्क्वायर यहाँ पर, और कूलम स्क्वायर। तो क्या यूनिट्स आ जाएंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। दोनों के यूनिट्स को देखें ध्यान से, कहाँ पर न्यूटन आ रहा है, यहाँ पर न्यूटन आ रहा है, इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं। Now let us place these charges in some medium of absolute permittivity epsilon. Epsilon is the absolute permittivity of medium. उस केस में फोर्स कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह आ जाएगा एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 ओवर R स्क्वायर इन मीडियम ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी एप्सिलॉन। दोनों को डिवाइड कर दें, FV ओवर FM इक्वल टू ये आ जाएगा एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लिखते हैं एप्सिलॉन R। This is called as relative permittivity of medium। यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं relative permittivity को। Relative permittivity of a medium is the ratio of absolute permittivity of medium to the absolute permittivity of vacuum। या फिर relative permittivity of a medium is the ratio of force between two charges placed a certain distance apart in vacuum to the force between same two charges placed same distance apart in medium। इस तरीके से हमने क्या डिफाइन किया था, K को डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सो एप्सिलॉन R इज इक्वल टू डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बेसिकली ये दोनों चीज़ें सेम हैं। तो अब हम इसको FM को कैसे लिख सकते हैं,
इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन की जगह हम यहाँ से लिख सकते हैं एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, या फिर एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू के। तो हमारे पास ये आ जाएगा या कैसे लिख सकते हैं एफएम को यहाँ एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट इंटू के, यानी कि यहाँ भी आपने देखा कि फोर्स इतना है वैक्यूम में दो चार्जेस के बीच, जब मीडियम में रखा तो वो कितना हो गया, कितना बन गया 1/k टाइम्स। चलिए अब डिफाइन करते हैं SI यूनिट ऑफ चार्ज। SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब। मान लीजिए कि हम दो चार्जेस लेते हैं 1 कूलम्ब ईच, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 1 मीटर। अब इस इक्वेशन में लेट अस से कि Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू 1 कूलम्ब एंड R इज इक्वल टू 1 मीटर। फोर्स कितना हो जाएगा FV इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट कितना 9 इंटू 10⁻⁹ SI यूनिट्स इंटू Q1 1 Q2 1, डिस्टेंस R 1 स्क्वायर 1, तो कितना आ गया 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। तो यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कैसे 1 कूलम्ब इज दैट मच चार्ज which when placed in vacuum at a distance of 1 meter from an equal and similar charge will repel it with a force of 9 into 10⁻⁹ न्यूटन। चलिए अब एक न्यूमेरिकल देखें। Two insulated charged copper spheres A and B are separated by a distance of 0.5 meter। डिस्टेंस यहाँ पर दिया है R is given to be 0.5 meter। आगे लिखा है what will be the mutual force of repulsion if each sphere is given a charge of 6.5 into 10 to the power -7 coulomb। Each charge means Q1 equal to Q2 equal to this much। ये कूलम में है, ये डिस्टेंस मीटर में है, तो SI में चलेंगे ये फॉर्मूला। सो हमारे पास FV कितना आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ SI यूनिट्स इंटू Q1 कितना है इंटू Q2 कितना है सेम, डिवाइडेड बाय 0.5 इसका स्क्वायर। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो फोर्स आ जाता है 1.521 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। अगले पार्ट में पूछा है what will be the force of repulsion if the charge on each sphere is doubled and the distance between them is halved। चार्ज डबल मतलब Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू 2 हो गया और डिस्टेंस कितना हो गया हाफ कर दिया। तो इसमें अब फोर्स कितना आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹, चार्ज कितना 2 इंटू दिस, दूसरा चार्ज भी 2 इंटू डिस्टेंस क्या हो गया हाफ, डिस्टेंस का स्क्वायर लेना है तो हाफ का स्क्वायर। तो अब फोर्स कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4,
1/2 स्क्वायर 1/4 आ गया, 4 ऊपर जाके 4 इंटू 2, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, ये हो जाएगा 16 टाइम्स 16 इंटू दिस, तो आपके पास आ जाएगा 0.24 न्यूटन। ये इस केस में। थर्ड पार्ट में पूछा है एंड इफ द टू स्फीयर्स आर प्लेस्ड इन वाटर ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80, अब मीडियम में रखा है तो फोर्स कितना हो जाएगा। अब इस पे आ जाते हैं Fv, जब चार्जेस इतने ओरिजिनल और हमारे पास ये फोर्स आया F। अब इस केस में हमने क्या करना है, Fv हमारे पास इतना, अब निकालना है फोर्स व्हेन द चार्जेस आर प्लेस्ड इन मीडियम। वी नो दैट फोर्स Fv over Fm इक्वल टू K, Fm over Fv कितना हो जाएगा, 1/K। तो उस केस में हमारे पास Fm इक्वल टू 1/K इंटू Fv, ये फॉर्मूला। तो मीडियम में फोर्स कितना हो जाएगा, 1/K टाइम्स, हमने पढ़ा भी है। अब हमारे पास Fm आ जाएगा 1/K कितना, 80 कहा है, इंटू 1.5 to 1 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन। तो ये कितना आ जाएगा, 1.9 इंटू 10 टू द पावर -4 न्यूटन। ये चेक कर लें कैलकुलेशंस। तो इस तरह से बच्चों आप समझ सकते हैं किसको, कूलम्स लॉ को और कूलम्स फोर्स को। बट बिकॉज फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन भी बतानी चाहिए। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। थैंक यू।